ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مرضت وهو يشفين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، قرآن کی آیت میں نے جو ابراہیم علیہ السلام کا کسی کافر مشرک بادشاہ سے مناظرہ ہو تو اس کی ایک آیت میں نے پڑھی. اس مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ انبیاء کے ادب عظیم ادب ہوتا ہے جی، ان کے کلام بھی بڑا مؤدبانہ ہوتا ہے. انہوں نے مرض کو یہ نہیں کہ جب مجھے اللہ مریض کرتے، بلکہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے مریض ہوتا ہوں تو اس کا بنیادی روٹ کاز ہم خود بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈائٹ میں کوئی خیال نہ رکھے، آرام اس کو پراپر نہ دے، اس کی جو حقوق ہے نفس کے وہ ادا نہ کرے تو وہ کاز بن جاتے بیماریوں کا. سمجھے گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو مخلوق پیدا کی، حوالے اس کی کر دے دنیا میں کہ اس کا صحیح استعمال کرو، اور جو صحیح استعمال نہ کرے گا اس کے اوپر پھر پنشمنٹ بھی رکھی. شروع کے لیکچر تو اسی طرح جو جتنی بھی دنیا کی وسائل ہیں اس کے خالق حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن سپرد کر دیے گئے ہیں حضرت انسان کو کہ تم محنت کرو اور اس سے حاصل کرو. ہمارے جو پشاور میں استاد تھے، پشاور یونیورسٹی سے میں گریجویٹ ہوں، وہ اور ہمارا آبائی تعلق کھیتی باڑی زمیندار سے جی، تو وہ انہوں نے مجھے اتنی مانیوٹلی بتایا، اور اس میں بھی بیسک کاز یہ تھا کہ میری اہلیہ وہ بھی ڈاکٹر لیاقت میڈیکل کالج سے جی. وہ ہمارے پہلے کلچر میں وہ مائیں دادیاں ایک دوسرے کو پرپوز کر لیتی تھی بچپن سے کہ یہ فلاں کی ہوگی، یہ فلاں کی ہوگی. تو میں جب گریجویشن کی تو ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا تو ہمارے اوپر دین کا رنگ چڑھنا شروع ہوا. تو وہ جامشوروں سے اپنی میڈیکل ایجوکیشن چھوڑ کے اپنے گاؤں آ گئی. مجھے ان بزرگ نے وہاں پشاور یونیورسٹی سے میسیج بھیجا. میں اس وقت بنوں میں میری پوسٹنگ ہو گئی تھی، گریجویشن میری ہو چکی کہ مجھ سے آ کے ملو. میں ملا تو پہلی بات انہوں نے کی کہ خشک مولی کب سے بن گیا. چونکہ ہمارے مربی تھے، ان کی باتیں بری بھی نہیں لگتی. کہا، میں نے کہا سر کیا چوک ہوئی جی؟ کہا آپ کی دلہن میڈیکل چھوڑ کے آپ کے گاؤں پہنچ گئی ہے، آپ بھی دلہن کو بٹھا دیں، میں بھی اپنی بچی کو بٹھا دوں، اور دوسرے بھی اپنے عزیزہ کو بٹھا دیں، تو ہماری بچیوں کے علاج معالجہ کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک اس کو واپس بھیجو، وہ اپنی ایجوکیشن پوری کرے، اس کے بعد پھر آپ لوگ کی اپنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے جیسی بھی ہو. لیکن پھر اس میں انہوں نے ٹریڈز کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور امام غزالی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی ٹریڈز ہیں، میڈیکل فیلڈ ہے، انجینئرنگ ہے، بزنس ہے، بینکنگ ہے، سمجھ آئے گی، جتنی بھی دنیا میں ٹریڈز ہیں اس کے ایکسپرٹ پیدا کرنا یہ امت کی ذمہ واجب کفایہ ہے. کفایہ سے مراد یہ ہوتی کہ اتنی تعداد میں ہوں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، ورنہ ساری امت گناہ گار ہوگی. دوسری بات جو انہوں نے وسائل کی وہ اتنی عجیب تھی کہ آج تک میں دنگ رہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ نے زمینیں دی ہیں. یار سائلنٹ کر دو آپ لوگ، کیا ہو گیا جی. اور آپ اگر اور وسیلہ زمین کے پیدا کرنے والے وہ ہیں، پانی کے وہی ہیں،
खेती को उगाने वाले वही हैं। अगर आप मेहनत से काम करें तो आपकी 10 लाख टन उससे होती है। लेकिन अगर आप सोते रहें, मेहनत न करें, कसरमंदी से करें और वो जो है 5 लाख की होगी, तो आज से बाकी 5 लाख का आप माशर में सवाल होगा कि ये रिसोर्स तो मैंने आपके हवाले किया था, और ये 5 लाख जो गला है ये दीगर मखलूक के खुदा के लिए मुकर्रर था। तुमने कोते की सोते रहे, इसका जवाब दो कि क्यों ये हुआ। तो अल्लाह खालिक है और वो उन्होंने सारे रिसोर्सेज बनाए। इसी तरह ये बीमारी का जो रूट काज होता है, जो मैंने आयत पढ़ी, वो हमारी बेहतियाती होती है। या तो हमने डाइट में एहतियात न की, या आराम में एहतियात न की, या दूसरी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको अपनी तरफ का कि जब मैं मरीज होता हूँ तो शिफा वही फिर मुझे देते, मुझसे निकालते वही। इन नफ्स अलैकुम हक को हजूर से सब ने फिर इन आयतों की शरह फरमाई है नहीं जी, वो तो अमली नमूना थे नहीं। फरमाया कि हर इंसान के अपनी जो अल्लाह की दी हुई अता है, उसको आंखें, कान, नाक, मैदा वगैरह, ये इनके फिर हुकूक है। जहाँ अरबी में अलैका हो जाए तो वाजिब होते हैं कि उनके हकूक़ का लिहाज रखना वाजिब है, और वो 3 हकूक़ लिखते हैं। एक जनरल हेल्थ, जो उसको हम लोग कहते हैं, आप हजरत कहते हैं कि जनरल हेल्थ की प्रोटेक्शन ये वाजिब है। वही जो आए थे ना कि इसको प्रोटेक्ट करोगे तो इसको नफल पढ़ने वालों से ज़्यादा अजर मिलेगा। एक आदमी है कि वो नफली इबादत में बैठे हुए कुरान जिक्र तिलावत में एक एक्सरसाइज के लिए किया। समझेंगे, मैं कल भी इनके यहाँ वो गया था जो क्लब में नौजवान वहाँ पे, पिछले भी आए थे गए, तो एक्सरसाइज करना ताकि ये मेंटेन रहे, ये तहसीली मुस्तहबात से अफजल है कि एक आदमी को नफली इबादत में बैठे, एक है वो इसकी मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी है ना जी, जो इसकी वेयर टेयर की और जो इसका मोबाइल वगैरह चेंज करने की कोशिश है, उसको तनख्वाह भी मिलती है, बोनस भी मिलती है नहीं, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन करने को वाजिब करार दिया है। और वो इसमें बेहतियाती करने से ये फिर काज बन जाती हैं मर्जों का। दूसरा जो वाजिब है वो तहफ़्फ़ुज़ क़ुव्वत है। क़ुव्वत उससे जनरल हेल्थ से हटा के उन बुज़ुर्गों ने हदीस के मफ़हूम से लिया है। जैसे क़ुव्वत अक़लिय्या है, अक़ल की एक वो जो अज़्म इरादा है वो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। ये भी मुतासर होते हैं बाज़ बेहतियातियों से। उसमें हमारे सारे समझदार बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा जो वो इसमें वो आता है अबकर, वो डिक्लाइन आता है उस क़ुव्वत में, वो बदनज़री से आता है क्योंकि मर्द जो है ये उसकी, तो आप लोग की मेडिकल फील्ड अब साबित कर रही है कि हमारे ख़वातीन में हया बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली वो पैसिव है, मर्द एक्टिव होते हैं, उसकी पलीद नज़रें उसको फिर एक्टिव करती हैं। इसलिए पहले मर्द को कहा गया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो, बाद में औरतों के डर से। तो वो उससे क़ुव्वत इरादा और उसकी सारी क़ुव्वतें बहुत मुतासर, इसलिए पहले उसको रोका गया कि इसको इसकी हिफाजत करो, और इससे सारी क़ुव्वतें, उसकी क़ुव्वत इरादा, क़ुव्वत मर्दानगी, ये सारी मुतासर हो जाती हैं। तीसरा जो है वो जिसको हम हमारे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ, आप लोग उसको कहें, इसको कहते हैं जमीयत खातिर। अगर मेंटल उसकी जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाए,
समझ आएगी ना, साइकोलॉजी चीज़ें, किस्म की चीज़ें कह सकते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कह सकते हैं। ये फिर दोनों को मुतासर करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं रही तो इसकी जनरल हेल्थ भी मुतासर होती है और कुव्वत इरादा भी मुतासर होती है। और ये शरीयत के कितना प्यारा निज़ाम है कि उन्होंने रिसोर्सेज तो पैदा किए, हवाले इस हज़रत इंसान की कर दी, और इस हज़रत इंसान को फिर कहा कि इसको तुमने सही यूटिलाइज करना है। उसकी यूटिलाइजेशन उसके अपनी ज़ात से भी है, रिसोर्सेज से भी है और डेवलपमेंट से भी है। इस वक्त यानी दुनिया में रिसोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान सबसे रिचेस्ट मुल्क है। कुदरती वसाइल अल्लाह ने हमें इतने ज़्यादा दिए हैं कि ये टॉप पे आता है। हमारे आजकल तो रेटिंग करते हैं ना, पहले पे कौन है, जो स्टेटिस्टिक आलमी तौर पे हमें, और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से भी साबित है, मेरे हरम को आई ठंडी हवा की झोंकी जहाँ से, मेरे हरम को आई ठंडी हवा की झोंकी जहाँ से, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल को उसी हदीस की तरफ इशारा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जबल हिंदी के ऊपर चढ़े, लंबे लंबे सांस लिए। काबा के चारों कोने जोग्राफियल पोल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ आएगी। हम लोग ईस्ट की तरफ है, वेस्ट को मूव करते हैं, तो हमारा जो काबा जिस हिस्से को मूव करते हैं वो हिजर अस्वद से लेके मुल्तज़िम शरीफ तक है, ये हमारा काबा है जी। वो दूसरी तरफ थे जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग पहले आए हैं, जबल हिंदी जो था बड़ा एक पहाड़ था, सामने मक्का होटल वगैरह थे, ऊपर मदरसा रफात था, वो अपने ही एक्सटेंशन में उसमें आ गए हैं, मलिक अब्दुल्ला की जो नई एक्सटेंशन हुई, तो वहाँ ऊपर चढ़े पहाड़ पे, लंबे लंबे सांस ली। तो सहाबा ने पूछा रसूल को ख़ास बात, फरमाया हाँ, यानी खड़े तो मगरब की तरफ और रुख मशरिक को था। फरमाया क्या बात, क्या मुझे इस इलाके से जोहद दीन की और हिफाजत दीन की खुशबू आ रही। पूछा वो कौन से इलाका है, तो दो रिवायतें, एक में सिंध और हिंद दोनों का नाम ही, क्योंकि सिंध की सिविलाइजेशन और हिंद की सिविलाइजेशन शुरू से जुदा है। ये नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे, हिंदू और सिंधु उनके वेदों में ऐसा लिखा गया। सिंधु की औलाद इस तरफ आबाद हुई, ये तकरीबन बम्बई से राजपूताना, ये सारा जो हमारा हजूर के ज़माने का सिंध था, ये सारा इस तरफ है, इंडस की वजह से, समझ आएंगे। और उस तरफ वो हिंदू का इलाका। हमें जब वहाँ पे अरब मुल्कों में हम बाज ना समझ पाकिस्तानी पे हिंदी कहते तो हम रिएक्ट करते हैं कि हम इनसे जुदा है, शुरू से जुदा है। और हमारा जो सिंध था वो मौजूदा पाकिस्तान है हजूर के ज़माने, इसलिए हमें हिंदी न पुकारा करते। खैर उसमें रिसोर्सेज के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इब्न हजर साहब रहमतुल्लाह ने जमा किया अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, सहाबा की शान में और उनके फिर वाक़यात में, उसमें ये वाक़या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया में रिसोर्सेज के हिसाब से जो इंसानी डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक़ रखती है 20,000 है और 12,000 इस इलाके में, बाकी इलाके में 8,000 सारे में तकसीम है। मैं पिछली दफ़ा आया था तो ये मेरे शायद सरजमीन पाकिस्तान की उसमें भी मेरा ये जिक्र आ गया है जी कि इस सरजमीन 25 साल पहले ये मैंने लेक्चर दिया था इनके घर के ऊपर कि हमें रिसोर्सेज से अल्लाह पाक ने इतना रिच बनाया है कि दुनिया तंग है, लेकिन हम लोग बस पता नहीं क्या भूति पाँव है, क्या चीज़ें हमारे कह लिए वो है, वो अपने रिसोर्सेज को भी हम नहीं डेवलप कर सके। पहला रिसोर्स मैंने चतराल में बयान किया था कि ये जो इंडस रिवर है जो धाड़े मारता वो नीचे उतर रहा है, वहाँ शही मस्जिद दरिया के किनारे, और ये आवाज़ें दे रहे हैं आप लोग कि मुझे संभालो, मुझे संभालो। और
एक आबशार के बाद दूसरी और तीसरी के बाद चौथी, और ये जो वेव्स उसकी बनती हैं ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं कि मैं तो एनर्जी से फुल आ रहा हूँ, मुझे संभालो। यानी हमारे सीधा वापडा की जो है स्मॉल एनर्जी इसके हिसाब से इदारा बनो, उसकी ये स्टडी है कि 50,000 मेगावाट सिर्फ नेचुरल फॉल से हम हासिल कर सकते हैं, सिर्फ उसमें टरबाइन लगानी और उसको चैनलाइज करना, लेकिन नहीं कर सके। सारा हमारी ज़रूरत तो क्या सेंट्रल एशिया को भी दे सकते हैं। फिर ये इंडस जब हमारे काले बाग डैम से पहाड़ों से उतर के आता है, हमारा पंजाब और हमारा केपी का वो जनूबी अजला, ये अपनी सारी सरफेस उड़ेलते हैं जी। इसमें रेटिंग में उन्होंने कहा जो अमेरिका की है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड कैलिफोर्निया की है। तो मैंने बहुत सी जगहों पे इसको रेस किया कि मैं इससे आर्गू करना चाहता हूँ। फर्टाइल लैंड ये मेरा सब्जेक्ट रहा एग्रीकल्चर का, हमारे इरिगेशन के सब्जेक्ट। फर्टिलिटी जो वो होती है एल्यूवल सॉइल उसको कहते हैं, जो पहाड़ी मिट्टी होती है, और एल्यूवल सॉइल के अगर चंद फुट की बेड आ जाते तो कहते बहुत जरखेज हो गई। मैंने कहा मैं उसके अंदर घुटने चला हूँ, उसी सरजमीन का बच्चा हूँ। इसकी फर्टिलिटी इतनी है कि 2 फुट नहीं 14 फुट की बेड से एक बारिश होती है और यहाँ तक गंदम पकती है। तो पहले नंबर पे तो हम हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक के उस हिसाब से, लेकिन अगर चौधरी की ज़मीन की वजह से पहले नंबर दे दिए तो वो दूसरी बात है। और उसके मुताबिक खुद अंग्रेज लिखते हैं कि ये फूड बास्केट है, अगर ये इसको पूरा यूटिलाइज कर दिए तो सारी दुनिया को खिला सकते हैं। लेकिन अफसोस है मेरे अजीज़ों, इतना बड़ा रिसोर्स बिल्कुल बैरन पड़ा हुआ है कि जैसे दरिया के किनारे पे हम प्यासे हुए। 36 लाख एकड़ बीच में दरिया गुजर रहे, हमने यह बात कर सके। तो रिसोर्सेज में तो बहुत सारी चैलेंज हमें दी हैं, और पूछ भी होगी यकीन जो मैंने बताया कि मैंने दिया था, आप लोग क्यों उनको ये करते थे। इसी तरह फिर सिंध में है, तो सिंध में हमारा थरकोल जो दुनिया का सबसे अनटेप्ड वो है रिसोर्स है। और मैं जनूबी अफ्रीका गया था, वहाँ मलावी और उनके साथ जो है दूसरा मबोतो वगैरह के इलाके से बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं। मैं इसमें भी गया था जो उनकी रिफाइनरी है, उससे वो 100 बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कार्बन की क्वांटिटी को मिला के, और 100 बाई प्रोडक्ट्स जिसमें आपके हमारा जहाज़ों का तेल है, हमारे एविएशन का है, हमारे गाड़ियों का है, डीजल है, ग्रीसे हैं। लेकिन अफसोस है कि हमने उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सके, बावजूद इसके कि वो मौजूद है। इसी तरह हमारा जो समंदर है फिर आगे जो है बलूचिस्तान का, ये दुनिया का ख्वाब रहा है कि इस हॉट वाटर तक कैसे पहुँचे जाए, और अल्लाह ने हमें मुफ्त में दिए हुए। हमारे आसिफ संदेला थे नेवल चीफ, वो हमारे नेवी के बड़ा अमल दखल है सऊदी अरब में, वो आते रहते थे तो फिर मेरे साथ इशराक तक बैठते थे हरम में। उससे मैंने पूछा, अब तो वो रिटायर हो गए थे, कि चीफ साहब क्या पोजीशन है हमारी गवादर की, क्या फंक्शनल हो जाएगा? उन्हें की इंशाल्लाह हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या है, क्या दुनिया में इस वक्त 75,000 टन का हैवी जहाज़ जो है, सबसे जो हैवीएस्ट जहाज़ है वो 75,000 टन के। हमारे इस पोर्ट के ऊपर बैंक के साथ 80,000 का जहाज़ भी आकर रुक सकता है इतने। और फिर ये 2 क्रिस्टन की तौर पे बनो, ऐसे और ऐसे। इस तरफ भी 60 जो है शिप खड़े हो सकते, इस तरफ भी 60, 120। इतनी बड़ी पोटेंशियल किसी और बंदरगाह में नहीं है, और यहीं से यू टर्न ले सकते हैं। ये बाकी जो हमारे खलीजी इलाके, ये तो बीच समंदर के खड़े कर किश्तियों से फिर सामान उतार के ले, और टर्न करने में भी उनको मुश्किल होती है। तो अल्लाह पाक ने इस सरजमीन को बड़ा रिसोर्सेज से नवाजा है, और
हमारी कोताही होती है, जैसे मैंने हेल्थ से शुरू किया, वैसा मरस्तफ़ीन कि हमारी कोताहियों से हम बीमार होते हैं। अगर उन कोताहियों को रोक लिए जाए तो मर्ज़ी बहुत कम हो जाएंगी। और वो मैंने बता भी दिया कि इसको इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि रेस्ट का टाइम भी हो, डाइट भी बैलेंस हो, और कुछ न कुछ एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। उसके बाद ये बैलेंस रहता है। और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, इसको ज़ाया न करो। हमारे बाद मुल्कों में जर्मनी में से यानी उसने अगर खुराक अपने होटल में आर्डर ज़्यादा दे दिया, उसको बच गई, उसको पनिशमेंट होती है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो इतनी थी, इतनी ज़्यादा क्यों मंगाई, और ये तो तुमने नेशनल रिसोर्सेज को ज़ाया किया जी। समझ आएगी? तो हमारे यहाँ कितना ज़ाया होते चीज़ें। मदीना मुनव्वरा में हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मौलाना सैयद अहमद खान साहब जी, 60 साल वहीं पे रहे। वो इस आजिज़ को दोनों हरमैन में ड्यूटी का एजाज़ हासिल हुआ। मैं 10 दिन मस्जिद नबी पे बैठता था, 20 दिन मस्जिद हरम शरीफ पे। तो वो मेरे इंतज़ार में होते थे किसी ख़ास शख्सियत से मिलने के लिए। तो मुझे कहने फ़ारिग हो, मैं हज़रत फ़ारिग हो क्या। उस वक्त बकी के साथ 3 बिल्डिंगें थी जिसको औकाफ की बिल्डिंग कहते हैं, जो इनके जितने भी वो मालदार लोग होते थे उन्होंने उसमें अपने लिए फ्लैट और इस किस्म की सूट वगैरह हायर कर रखे। तो हम बिल्डिंग नंबर 1 की किसी फ्लैट में गए, तो हज़रत ने कहा उसको कि उस ज़माने में सऊदी अरब सोना उगल रहा था। ये मलिक खालिद के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। ज़मीन में हाथ डाल दे तो सोना ही निकलता। उन्होंने कहा कि शेख, मुझे तो इस मुल्क से कहत की बू आ रही है। उन्होंने कहा कुल्लु शे मुतवाजिद, सारी चीज़ें हमारे पास तो स्टोर भरे हुए हैं, हमारे जो स्टॉक भरे हुए हैं, तो कैसे है? उन्होंने कहा इस पर तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। जहाँ कोई रिस्क की पैरवी होती है वहाँ फिर कहत आता है। मैं जब अपने घर से मस्जिद नबी को आता हूँ तो गिदर वहाँ बड़े बड़े देगों को कहते हैं, बड़ी बड़ी देगे चावलों की, और साले बकरे कूड़ादानों में पड़े होते हैं। तो ये मुझे इंडिकेशन दे रही है कि बहुत जल्दी यहाँ कहत है। अब वही ज़माना आ गया जो हम देख रहे हैं कि बच्चे, मासूम बच्चे और हमारी बहनें कूड़ादानों में वो सीखों से कुछ रोटी के टुकड़े निकाल रहे ताकि बच्चों का पेट पाल सकें। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की नेमतों को शुक्र करो जो उसने हमें दी हैं, इसका सही इस्तेमाल करो, और नेशनल रिसोर्सेज को भी महफूज रखो, उसको ज़ाया न करो। इसी तरह हमारी बिजली है, पानी है, हत्ता कि वज़ू पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसराफ करेगा तो ये ममानियत है। ये जब वज़ू की है तो बाकी चीज़ों में हमारे नल खुले रहते हैं। हमारे जामशोर यूनिवर्सिटी के उनके पब्लिक हेल्थ के इदारे ने रिसर्च की, एक वज़ू पे एक आदमी 16 गैलन ज़ाया करते। बस नल खुला हुआ है, बस उसने हाथ धोया, खुला हुआ उसने बस कुली कर ली। 16 गैलन एक आदमी या एक स्टूडेंट सिर्फ वज़ू पे ज़ाया करते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज को महफूज रखने सिखा गए हमें, और उसकी फिर बुरे असरात भी बताए गए हैं, और इसकी पूछ कर भी बताया गया कि इसकी माशर में आप लोगों से मुतालबा होगा कि ये सोर्स तो मैंने आप लोग को दिया था मखलूक के खुदा तक पहुंचाने के लिए। आप सोते रहे, उससे हमारी मखलूक का 50,000 टन कम हुआ, इसका जवाब नहीं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक मज़हब है, इसको हम लोगों ने बस सिर्फ चंद इबादत तक महदूद कर लिए, वो नहीं है। इसमें इबादत भी है, मामलात भी है, मुआशरत भी है कि आपस में कैसे रहना, माँ बाप का क्या हक़ है, कुलीग्स का क्या हक़ है, बहनों का क्या हक़ है, ख़वातीन का क्या अदब है, ये उसका पूरा हिस्सा है। और अखलाक़ियात का भी है कि वो जो है मुतवाज़े हो, अल्लाह की जो है जो उन्होंने अदाब है कि झूठ न बोले, तकब्बर न हो, समझ आए, ये सारे उससे ताल्लुक़ है।
کامل اسلام کی ان 5 چیزوں پہ ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اصلاح نفس. اور یہ صرف باتوں سے نہیں آتی، نوازوں سے، نہ کتابوں سے، نظر سے پیدا کوئی خرید بھی نہیں سکتا کہ یہ کوالٹیز ہمیں آ جائے. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا کی. اسی کو ہمارے ایک بزرگ ہیں جلال آباد انڈیا کے بزرگ، چونکہ حرم میں سارے آتے رہتے اور ہمیں ان کی سب کی خدمت کی سعادت رہی. ان کا شعر بڑا پیارا ہے: افلاک سے اتاری جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی یہ میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جو اللہ والوں کے ساتھ مواہب جو حقیقی ہوتے ہیں، وہ جب ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. میرے دوستو، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرو، معاشرے کے ریسورسوں کو بھی ضائع نہ کرو، اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنے کی پوری کوشش کرو، اور اہل پاکستان کی صحت کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، ہمارے دوستوں نے ہماری گزارشات کو سنا. اے اللہ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے اس نوجوان ڈاکٹر بچیاں ہیں ہماری، اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو امت کا، مسلمانوں کو، اہل پاکستان کے کارآمد فرد بنا. اے اللہ ہمارے جو عالمی شکنجوں میں پھنستے جا رہے، اس سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ورلڈ بینک اور IMF کی شکنجے سے امت اسلام پاکستان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے نظریاتی اور جغرافی حدود کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مسائل بھی حل فرما، وسائل کو بھی ترقی یافتہ بنا. اے اللہ شرق و غرب میں ہمارے ظاہری اور چھپنے ہوئے دشمن ان سب کو نابود فرما. اے اللہ اس امت اسلام کی اور پاکستان کے خاص طور پہ ہر طرح سے تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کی صلاحیتوں پر غروِ کار لا. اے اللہ حرمین بھی بچوں کو آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حاضرین میں جو ان کے حاجتیں ہیں، نیک مقاصد ہیں، اس کو پورا فرما. اور پورے جو ان کو خدشات ہے، پریشانی ہے، اس سے ان کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما، جو امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، اور اس کو ترقی یافتہ بنانے والے ہوں. اے اللہ بری قیادت سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے دعاؤں کو اپنی پاک سے سنت و فیض قبول فرما. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.